ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں نازیہ خان۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ وزیرستان کے سرحدی علاقے گھاریوں میں سیکیورٹی فورسز کی پیٹرولنگ پارٹی پر دہشت گردوں کی فائرنگ، جوابی کارروائی میں ایک دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن سبی اور سپاہی نوید شہید، 2 جوان زخمی۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا کمپاؤنڈ تباہ کر دیا، ISPR۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی اشتعال انگیزیاں جاری، حاجی پیر اور بیرونی سیکٹر میں شہری آبادی پر فائرنگ، 13 سالہ لڑکی شہید جبکہ اس کی ماں اور 12 سالہ لڑکا شدید زخمی۔ پاکستانی فوج کی بھرپور جوابی کارروائی۔ بھارتی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، لائن آف کنٹرول پر فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج ریکارڈ۔ 20 جون کو LOC پر بھارتی فوج کی فائرنگ سے ایک شہری شہید، 2 زخمی ہوئے۔ بھارت LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، ترجمان دفتر خارجہ۔ وزیرستان ہو یا LOC پر فائرنگ، بھارت کو پاکستان کا امن ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ بھارت افغانستان میں بھی امن نہیں چاہتا۔ لداخ میں رسوائی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ BJP سرکار بے پناہ دباؤ میں ہے، بھارت کی حرکتیں نامناسب ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ مودی کی قیادت میں بھارت ایک بدمعاش ریاست بن گیا ہے۔ مودی بدترین معاشی اور سیاسی مسائل سے اپنے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے خطے میں مہم جوئی اور عدم استحکام پیدا کر رہا ہے، وزیر اطلاعات شبلی فراز۔ بھارتیوں نے مودی کو جھوٹا قرار دے دیا، کبھی نیپال کے ہاتھوں پسپائی اور کبھی لداخ میں ہوئی خوب پٹائی۔ مودی نے بھارت کو بنا دیا مذاق، کیا اس دن کے لیے ہم نے قربانیاں دی؟ بھارتی فوجیوں اور شہریوں کی دہائی۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وادی گالان میں کیا ہوا؟ بھارتی صحافی کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کے نام کھلا خط۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری، تازہ کارروائی کے دوران سری نگر میں مزید 3 کشمیری نوجوان شہید۔ نوجوانوں کو پزوال پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ علاقے میں موبائل اور انٹرنیٹ سروسز معطل۔ باکسر محمد علی کلے ایک عظیم سپورٹس مین تھے۔ وہ مادی نظریات سے بالا اور انسان کی تخلیق کے مقصد کو سمجھتے تھے۔ محمد علی کی طاقت اور ہمت کی پوری دنیا آج بھی معترف ہے، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ پاکستان میں کورونا کیسز میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,951 افراد نے وائرس کی تصدیق، تعداد 1,76,617 تک جا پہنچی، مزید 119 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3,501 جاں بحق، 67,892 صحت یاب۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی سربراہی میں حکومتی ٹیم کا اسلام آباد کے اسپتالوں کا دورہ، جولائی کے آخر تک 2100 سے زائد آکسیجن بیڈز کا اضافہ کریں گے۔ ہاٹ اسپاٹ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن سے وبا کا پھیلاؤ روکنے میں مدد ملے گی، اسد عمر۔
कोरोना से बचने के लिए अवामी मुकामात पर फेस मास्क जरूरी करार, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके ही वायरस से बचा जा सकता है। कोरोना से वफात पाने वाले 72% अफराद की उम्र 50 साल से ज्यादा थी। डॉक्टर जफर मिर्जा की NCOC में मीडिया ब्रीफिंग। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 90,35,000 से तजावुज कर गई। 4,69,581 अमवात, 43,96,000 सेहतियाब। अमरीका में मुतासरा अफराद की तादाद 23,55,000, ब्राजील में 10,86,000, रूस में 5,85,000 और भारत में 4,26,000 से ज्यादा हो गई। अमरीका में 1,22,000, ब्राजील में 50,000 से जायद जान की बाजी हार गए। मारूफ आलिम दीन अल्लामा तालिब जौहरी कराची में इंतकाल कर गए। वो गुज़श्ता कई रोज से निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। अल्लामा तालिब जौहरी ने तवील अरसे तक PTV पर शाम गरीबा की मजलिस भी पढ़ी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अल्लामा तालिब जौहरी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, अहले खाना से ताज़ियत, मरहूम की मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। मुल्क भर में 20,75,000 एकड़ रकबे पर टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन मुकम्मल। 40 अजला के मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल तल्फी के मुहिम में 900 टीमें शरीक। ऑपरेशन में बेहतर नताइज के लिए आर्मी के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर। और ओलंपिक डे मनाने के लिए पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने जारी ऑनलाइन शैडो बॉक्सिंग फिटनेस टूर्नामेंट के मुकाबलों की तारीख में एक दिन की तौसीह कर दी। मुकाबले 24 जून तक जारी रहेंगे। PTV न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। PTV होम, PTV न्यूज, PTV ग्लोबल, US, UK, यूरोप, जहां भी आप हमें देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, सुबह में देख रहे हैं, शाम में देख रहे हैं, अब वक्त है कि कुछ सारा म्यूजिक की बात हो जाए विद नताशा हुमैरा एजाज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू? आई एम गुड। आज सुना कि कोई स्विच का सीन है, क्या है भाई आज? देखिए, मेरा हाल ही में मैंने थोड़ा रिसेंटली एक गाना निकाला था अभी अभी के नाम से, और मैं चाह रही थी कि मैं आपको सुनाऊं। तो सुनाओ। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा मुश्किल बनाऊं आपके लिए। मुश्किल बनाओ मेरे? ठीक है। तो मैं आपके लिए एक क्विज लाई हूँ। 8 सवाल हैं, इनमें से अगर आप 5 सवालों के जवाब सही दे देते हैं, अच्छा, मैं आपको अपना गाना सुनाऊंगा। बहुत मुश्किल काम है। मतलब म्यूजिक के बाद, लेकिन ये सवाल क्या है कि राग एमन जो है वो सुबह में गाया जाता है, शाम में गाया जाता है, इस तरह के सवाल हैं? आई थिंक जब तक ये चीजें मैं खुद बताना ना शुरू करूँ शो पे, तो उनके सवाल पूछने बहुत अनफेयर है। एग्जैक्टली। तो मैंने सवालों को ट्रिविया रखा है, ग्लोबल ट्रिविया रखा है, पाकिस्तानी ट्रिविया रखा है, और ये इन सवालों के जवाब मुझे लगता था कि आपको पता होंगे, लेकिन मैं आपको ही टेस्ट करना चाह रही थी। अच्छा चलो, लेकिन अगर 5 से कम हुए तो फिर गाना नहीं मिलेगा। ओके, सो आई हैव टू बी ओके, ग्रेट। सो 8 सवाल हैं, 8 में से 5 साथ साथ चेंज भी करती रहती हूँ। ओके, सवाल नंबर 1। मशहूर गुलकारा सेलिन डियोन ने अपना गाना माई हार्ट विल गो ऑन कितनी टेक्स में रिकॉर्ड किया? ऑप्शन मिलेंगे, मैं आपको देती हूँ। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 3। Every night in my dreams I see। तुक्का लगाऊंगा, जाहिर है मुझे पता तो नहीं है। तुक्का ये क्योंकि तुमने एक ऑप्शन में रखा है 1,
تو میرا تکا ہی ہوگا کہ تم کو کہ ہاں دیکھیں انہوں نے سنگل ٹیک میں گانا گایا تو 1. ایکچولی یس کریکٹ فینٹاسٹک. سوال نمبر 1. اس کے بعد میں آخر میں ایک ٹریویا دوں گی اس گانے کے بارے میں, بہت انٹرسٹنگ. لیکن ساتھ ساتھ بتاتی رہو. ساتھ بتاؤں تو یہ ایکچولی مائی ہارٹ ول گو آن جب سیلین ڈیون نے سنا تھا تو وہ نہ وہ گانا چاہتی تھی نہ جیمز کیمرون اپنی مووی میں استعمال کرنا چاہتے تھے. اچھا. آن دی انسسٹنس آف دا پروڈیوسر آف دا سانگ اور سیلین ڈیون کے جو ہسبینڈ اور مینیجر تھے انہوں نے انسسٹ کیا تو سیلین ڈیون نے کہا ٹھیک ہے میں ایک ڈیمو ریکارڈ کر لیتی ہوں, آگے دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ایک ٹیک میں ریکارڈ ہوا ہے گانا. میرا ایک جواب درست ہو گیا. اگلا 1 on 8. اوکے. سوال نمبر 2. نامور اطالوی کمپوزر ویوالڈی کا پہلا نام کیا تھا؟ آپشن اے برنارڈ, آپشن بی اینٹونیو, آپشن سی جان, آپشن ڈی اسپینسر. اینٹونیو. بالکل. یہ آسان سوال تھا کیونکہ یہ سب کو آف کورس پتا ہوگا. سوال نمبر 3. مرحوم مہدی حسن صاحب کو کس سال میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا؟ جواب نمبر 1 1980, 1975, سی 1985 یا ڈی 1965. اب ظاہر ہے مجھے جواب نہیں آتا تو میں ذرا اندازہ کر کے ان کے کیریئر کے حوالے سے لگاؤں گا. 75, 80, 85 اور 80, 75, 85, 65. نہیں 65 تو نہیں ہو سکتا. 80 کریکٹ نہیں. اچھا 80 کا ایک اور آپشن ہے. 75. اچھا 85. 85 نہیں لیکن لیٹس بی ویری آنیسٹ یہ کراس ہوگا. میرا پہلا جواب دس واز اے ڈیفیکلٹ ون آلسو. میں نے اندازہ لگایا تھا. اچھا اندازہ تھا, کافی اچھا اندازہ تھا. اوکے. سوال نمبر 4. سویڈش پاپ گروپ ایبا 1972 میں کس شہر میں بنا؟ یورپ کے کس شہر میں بنا؟ اسٹاک ہوم. آپشن کی ضرورت نہیں ہے. چلو دیٹس فینٹاسٹک. ایگزیکٹلی. سو ویل. ایبا آپ کے 2 گانے کھل جائیں گے. ایبا وہ بینڈ ہے جو ہم نے اپنے لڑکپن اور جوانی میں 70s 80s میں ایبا اینڈ بیٹلز they were ruling. آپ کو ایک بات بتاؤں, تو میں I'm a big ایبا فین. ایبا کا جو یوروویژن کانٹیسٹ ون تھا وہ سویڈن کا پہلا ون تھا ان دا یورو کانٹیسٹ. اگر آپ کو نہیں پتا یوروویژن کانٹیسٹ کیا ہوتا ہے, تو ایک یورپ میں بہت سالوں سے ایک اینول کمپٹیشن ہوتا ہے گانوں کا. اس میں یورپ کی بہت سارے ممالک جو ہیں اپنے ایک ریپرزینٹیٹیو کو بھیجتے ہیں. سویڈن سینٹ ایبا دیٹ ایئر 1974 میں they won. It was the first win for Sweden. اچھا میں am I winning or not? You are. آپ کے 1 2 3 4 you've already gotten. 4 ہو گئے اور ایک غلط ہے. جی. تو اب پیچھے کتنے رہ گئے؟ 3 میں سے ایک میں نے صحیح جواب دیا. ڈن. آگے چلو. اچھا سوال نمبر 5. پاپ اسٹار ایلوس پریسلی امریکہ کے کس شہر میں موت پائے گئے؟ اے واشنگٹن, بی نیو یارک سٹی, سی میمفس یا ڈی اوکلاہوما. بہت مشکل ہے اس میں تو تکا لگانا. چلیے میں ایک کلو دے دیتی ہوں. کلو دینے دیتے ہیں مجھے. اچھا چلیے ٹھیک ہے, اٹس اوکے. ٹھیک ہے. غلط میمفس ہے ایکچولی. میں نے نیو یارک اس لیے کہا تھا کہ وہ ذرا زیادہ پروبیبلٹی تھی کہ نیو یارک یا واشنگٹن. جی لیکن آئی تھنک ایلوس پریسلی belong to Memphis. اوکے. اگین ایک لیجنڈ میوزک کے اندر ہے نا. آج بھی لوگ ان کے انداز موسیقی کو انداز سے ان کو اسٹائل ہی لوگ کاپی کرتے ہیں آج تک. اچھا اب اس وقت کیا سین ہے جی؟ میرے 4 جواب صحیح ہو گئے, 2 غلط ہیں. 1 2 3 4 جی 4 صحیح ہیں, 2 غلط ہیں. اب اگلے 2 میں سے ایک میں نے صحیح جواب دینا ہے تو ہمیں نتاشا گانا سکھائیں. سوال نمبر 6. پاکستان پاپ پائنیئر نازیہ حسن نے اپنا پہلا پلے بیک سنگنگ کے لیے ایوارڈ کس عمر پہ جیتا؟ جواب نمبر 1 21, بی 22, سی 15 یا ڈی 35. Was she 21, 23 or 15 or 35 when she won her first award? اب اس کے اندر بھی میں وہی بات تکا لگاؤں گا. میں آپ کو اس سے کلو دیتی ہوں. She was a prodigy. ایگزیکٹلی وہی اس کے لیے میں کہنے لگا تھا کہ اس حوالے سے میں ایک تکا لگاؤں گا 15. Absolutely correct. Absolutely correct. ورنہ اگر 15 نہ ہوتا نا تو نتاشا کبھی اس کے اندر 15 نہ لے کے آتی. اور جب صحیح جواب 20 ہوتا نا 15 نہ لے کے. I read your mind. Thank you. Thank you. 5 ہو گئے میرے. لیکن اگلی دفعہ مجھے تھوڑا انپریڈکٹیبل ہونا ہوگا. اچھا اب 2 سوال رہ گئے, میں آپ سے دونوں پھر بھی پوچھوں گی. میرا 1 رہ گیا. ایکچولی تو 2 رہ گئے. ہاں 2 رہ گئے. اچھا چلے پوچھیں. 7. وہ کون سا ایسا اطالوی اوپرا سنگر ہے جو 12 سال کی عمر پہ ایک فٹ بال ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے؟ اے پاوروٹی, بی مائیکل جیکسن,
C, Monica Bellucci, जिसको मैं बलूची है लेकिन मैं बलूची कहती हूँ because it's funny. And D, Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Yes, absolutely. Yes. Okay, now, you won. मुझे पता नहीं था लेकिन इसमें अंदर जहानत थे ना, तालवी तो और मैंने माइकल जैक्सन का नाम, माइकल जैक्सन, मतलब ऑफ कोर्स, तो वो तो नहीं सकते. वेरी गुड. स्टूडियो के हिसाब से आप जीत चुकी हैं, लेकिन मैं लास्ट सवाल फिर भी पूछूंगी. पूछिए. वो कौन सा ऐसा गाना है जो नताशा हुमैरा एजाज को सिर्फ अपने 30s में समझ आना शुरू हुआ? आई लव द क्वेश्चन. आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए बाय नादिया हसन. ठीक है. B, I Will Survive by Gloria Gaynor. Number C, In the End It Doesn't Even Matter, Linkin Park. या D, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में. Doesn't even matter. हाँ, correct. नहीं, गलत. कौन सा? अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जी. आई स्वेयर, मुझे ना seriously? बड़े होते हुए मुझे किसी चीज की, मुझे इस गाने की बिल्कुल समझ नहीं आती थी. नताशा कौन सा गाना सुना रही है? दिस इज अ सॉन्ग कॉल्ड अभी अभी बाय नताशा हुमैरा एजाज. जब रूबरू आए जैसे थे हाल Wow, very nice. Thank you, इतना comforting गाना, बड़ा मजा. अच्छा, बहुत मजे का सेगमेंट आज तुमने सही मेरी याददाश्त के इम्तिहान लिया. Thoroughly enjoyed. Have a great day. हम चलेंगे एक छोटा सा ब्रेक राइजिंग पाकिस्तान में, और राइजिंग पाकिस्तान में आपकी मुलाकात में इस ब्रेक के बाद करवाने जा रहा हूँ फायजा से. फायजा हमारी बहुत पुरानी पाकिस्तान टेलीविजन की पीटीवी की कॉलीग, जो कि उस जमाने में बड़े जबरदस्त किस्म के सेट्स लगाने की माहिर थी. बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स कहते थे फायजा से साथ हमने काम करना है. अब ये इस मुल्क में नहीं है, दूर जा बसी है अमेरिका में. आजकल आई नहीं, तो हमने सोचा कि उनको लेके आए और उनसे कुछ इंटीरियर्स, कुछ कलर्स, वेस्ट में कौन से कलर्स इन है, यहाँ पे कौन से कलर्स इन है, इस हवाले से, और टेलीविजन इंडस्ट्री में सेट्स कहाँ से कहाँ पहुंच गई ये इंडस्ट्री, इस हवाले से हम कुछ बात करेंगे. फायजा से रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं. दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी. फिर सुना दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, और अब तो लगता है दुनिया सिमटकर हमारी मुट्ठी में आ गई है. हर लम्हे कोई अपडेट, कोई ना कोई खबर, कुछ ना कुछ नया. इसीलिए हम आपके लिए ला रहे हैं वर्ल्ड इन व्यू. पूरे हफ्ते दुनिया भर में होने वाली सब न्यूज और अपडेट, ताकि कुछ मिस ना हो. वर्ल्ड इन व्यू देखिए हर हफ्ते रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर. पाकिस्तान टेलीविजन ने जब 1964 में अपनी नशरियात का आगाज किया, तो आपको याद होगा, कुछ को आप में से याद होगा कि, या पुरानी रिकॉर्डिंग से हम देखते हैं कि बड़े बेसिक से, बहुत सिंपल से, कई दफा एक बिल्कुल फ्लैट पीछे एक फट्टा सा लगा हुआ है और आगे न्यूज कास्टर बैठी है या बैठा है, या एंकर बैठी है बैठा है, और पूरा का पूरा प्रोग्राम हो गया. सेट्स ने फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, खासतौर पे हम ब्लैक एंड व्हाइट पे जब
कलर्ड की दुनिया में 1977-78 में आए, उसके बाद सेट्स भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बनते चले गए टेलीविजन प्रोडक्शन की। आज आप दुनिया भर में देखें तो सेट्स पे शायद सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाइज किसी चीज पे जो पैसा खर्च किया जा रहा होता है वो होते हैं सेट्स। चाहे कोई अवार्ड शो है, चाहे कोई मॉर्निंग शो है, चाहे कोई करंट अफेयर्स का न्यूज नाइट टाइप शो है, तो सेट्स ने कंटेंट के बिल्कुल बराबर आकर खड़े होकर एस्थेटिक्स और क्रिएटिव प्लेजर के हवाले से अपनी अहमियत बना ली। आज हम इसी हवाले से बात भी करना चाहेंगे और कुछ पुरानी यादें भी शेयर करना चाहेंगे फायजा शाह से, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन PTV का जब हम कहते हैं गोल्डन एरा कहते हैं। फायजा, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। हम गोल्डन एरा की जब बात करते हैं तो उस जमाने में आपने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। वो दौर था मेरा ख्याल है कि जब सेट्स पे काम बहुत ज्यादा शुरू होने लग गया था। तो हमें ये बताइए कि आज जब आप सेट्स डिफरेंट TV चैनल्स पे देखती करती हैं तो पैसा बहुत ज्यादा, अब दिल नहीं करता कि आज ये बहुत सा पैसा मुझे मिले तो मैं सेट डिजाइन करूं। उस वक्त तो बड़े कम बजट्स में काम करना पड़ता था। बिल्कुल सही बात है। उस नॉट इन 60s और 70s आई जॉइंड वेरी लेट, लेकिन एज यू सेड इट वाज 90s में, एंड एज यू नो कि उस वक्त कोई हमारे इधर कोई एज सच ट्रेनिंग या वो तो थी नहीं, इट वाज ऑन जॉब ट्रेनिंग, और उस वक्त इतना समझ भी नहीं होती थी कि कितना बजट क्या ये वो, एंड ऑफ कोर्स वो एक लिमिटेड बजट होता था और उसी में आपने सब करना होता था। तो यस, व्हेन आई लुक एट द सेट नाउ, तो उस वक्त मेरा दिल करता है कि हाँ, अभी भी मैं आई एम स्टिल विद शुएब मंसूर साहब के साथ। लास्ट मेरा प्रोजेक्ट वरना मूवी का था, बिल्कुल। तो द बजट डेफिनेटली वर्क, बट एट द सेम टाइम इसका ये मतलब नहीं है कि बेतहाशा बजट यूज हो गया है एंड आउटकम इज जीरो। ऐसे भी बहुत हैं, ऐसे भी है, हाँ, अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी बहुत हैं। और बाज दफा एक सिंपल एक ट्विग और एक फ्लैश जिसका आपने कहा है, उससे भी बहुत कुछ हो जाता है। इट्स बेसिकली द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम और जो सेट्स हैं उसको एक सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि वेस्ट में, खासतौर पे हॉलीवुड में या बैरूनी ममालिक की वो इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज जहाँ पे मीडिया और फिल्म मेकिंग को पढ़ाया जाता है, वहाँ पे क्या सेट्स को भी बाकायदा पढ़ाया जाता है? और ये सेट डिजाइनिंग भी एक पूरी एक डिफरेंट, जिसका कैमरा वर्क है या लाइटिंग है, बिल्कुल एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म है एज ए डिसिप्लिन? एब्सोल्युटली, बिल्कुल टोटली डिफरेंट इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। और हमारे यहाँ पे जो देयर इज अ कंफ्यूजन, जो इंटीरियर डिजाइनर है वो सेट डिजाइनर बन गए, या जो सेट डिजाइनर है वो इंटीरियर डिजाइनर हो गए। आई वुड पॉइंट द फिंगर टुवर्ड्स माई सेल्फ, बट बेसिकली आई वाज एन आर्टिस्ट, तो आई कुड मैनेज दिस थिंग। लेकिन जो सेट डिजाइनिंग है ना, स्पेसिफिकली हमारी आंख को, I was very lucky to be trained by निसार मिर्जा साहब, बदरुल इस्लाम सैयद साहब, रशीद मिर्जा साहब, to look through the camera lens, क्योंकि हमने एक वो स्क्वायर बॉक्स या जो स्क्रीन है, जो चीज उसमें नजर आ रही है, that is the set. लॉन्ग शॉट तो एक आध बार होता है, बट मोस्टली इट्स यू नो व्हाट यू सी इन दैट स्क्रीन इज द थिंग। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी सेपरेट सब्जेक्ट और बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन अभी यहाँ पे हम, क्योंकि अभी स्टिल वी आर इवॉल्विंग, यू नो, तो उस लेवल पे या हैं डेफिनेटली। आई डोंट मीन टू से कि बहुत बुरे सेट है या ये है, यू नो, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। लेकिन आपने जो आपका सवाल है कि एक अलहदा सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा जाता है या पढ़ाया जाता है, यस डेफिनेटली। अच्छा फायजा, अब ये बताइए कि एक सेट डिजाइनर के लिए कितना उसका ब्रीफ क्या होता है? डायरेक्टर कहता है अच्छा मुझे 20 मोमबत्तियां चाहिए, मुझे 2 ऐसे पीछे हार गेंदे के हों, क्योंकि हमने जनाब हमने चांद रात का शो रिकॉर्ड करा। वो क्या मतलब वो डायरेक्टर बताता है या सेट डिजाइनर खुद बैठ के सोचता है हम चांद रात का शो है, चांद रात के शो पे अब ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाउ डज इट वर्क? व्हेन आई वाज वर्किंग विद PTV, तो जो राइटर या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर जब स्क्रिप्ट आता था तो द फर्स्ट पर्सन दे रीच्ड वाज द डिजाइनर, क्योंकि एज अ डिजाइनर, एज एन आर्टिस्ट, जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो वी आर विजुअलाइजिंग इट एट द सेम टाइम। इवन ड्रामे में भी यही होता है? इवन ड्रामे में तो बल्कि ज्यादा है।
اس میں جب جو لکھی ہوئی چیز ہے اور جو کسی شخص کا یا فیملی کا سیٹ اپ آپ دکھا رہے ہیں, جو تحریر میں جو الفاظ میں ہے, اس کو پھر آپ نے ذہن میں اس کی پکچر بنانی ہے. آپ اس کا کوئی بھی ڈیزائنر جو آرٹسٹ ہے نا, وہ ایک خالی کمرے میں بھی ہوگا نا, تو وہ اس کو کچھ کہا جائے گا نا, تو وہ فنشڈ پروڈکٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. اچھا, اب تو زندگی آسان نہیں ہوگی, اب تو ڈرامے لوکیشن پہ بنتے ہیں. بہت آسان ہے, بہت آسان ہو گیا نا. بہت آسان ہو گیا. بٹ ایز آئی سیڈ ایٹ دا سیم ٹائم, کیونکہ آپ پورا کمرہ, جب آپ ایک شخص داخل ہوتا ہے وداؤٹ دا کیمرہ, کمرے میں ایک فل امپیکٹ ہوتا ہے. آپ نے وہ تو نہیں دکھانا نا کیمرے میں, آپ تو اسپیسیفک شاٹس لے رہے ہوتے ہیں. کوئی کونا ہے, کوئی کونے سے آپ نے, اور اس میں بھی ضرورت پڑتی ہے سیٹ ڈیزائنر کی, یا اسٹیٹکلی اگر ڈائریکٹر اچھے ہیں تو وہ ڈائریکٹر کے دماغ پہ اصل میں اور اتنی چیزیں ہوتی ہیں نا, تو دیٹس وائی دا سیٹ ڈیزائنر کمز ان کہ جی یا کہ یہ فیلڈ آپ سنبھالیں, کہ if that person, if the designer sees something is disturbing or bothering, ادھر کان سے کوئی چیز نکل رہی ہے یا سر سے پیچھے سے سیٹ کچھ چیز بادر کر رہی ہے, تو موو اٹ کہ جو آپ جس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں وہ چیز ڈسٹرب نہ ہو, وہ شخصیت ڈسٹرب نہ ہو. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ جو اب ڈیجیٹل بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں انٹرنیشنلی بھی ایوارڈز میں ملٹی اسکرینز ہیں, لائٹس, تو وہ سیٹ سے زیادہ وہ لائٹ اینڈ ساؤنڈ شو والا ایلیمنٹ آ گیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ یہ بھی ایک دس از وے, جیسے آپ نے کہا تھا وی آر ایوالونگ. ایگزیکٹلی, دس از سو ٹرو, اٹ بادرز می اے لاٹ. میں اپنی بات کر رہی ہوں, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اور ریپرزینٹنگ اینی ادر آرٹسٹ اور ڈیزائنر, بٹ اٹ بادرز می اے لاٹ کہ آپ جو شخصیات ہیں, جو پریزنٹرز ہیں یا جو گیسٹس ہیں, وہ اس سیٹ میں اتنا دب جاتے ہیں کہ ایز یو سیڈ کہ وہ اتنا گلیمر اور گلٹری اور اتنا وہ لائٹ شو ہو جاتا ہے. اب احسن خان اور ماہرہ خان اگر ڈانس کر رہے ہیں, کوئی ایوارڈ شو ہو رہا ہے, تو وہ ان کا ڈانس ٹھیک ہے, لیکن اس کے ارد گرد اگر شب شبا ہے تو وہ مزے کا تھوڑا لگے. Of course, it depends on the program you are doing. You see? Exactly. اور یہ ساری لائٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا, it is to enhance that. پاکستان میں کس طرح کا کام آپ کرنا چاہتے ہیں؟ میری کیونکہ ملٹی ڈائریکشنل فیلڈ ہے, سیٹ ڈیزائننگ میں تو میں ہوں, اور شعیب صاحب کے ساتھ کر رہی ہوتی ہوں ان کے پروجیکٹ. اس کے علاوہ انٹیریئرس میں میرا بہت انٹرسٹ ہے, اور انٹیریئر ڈیزائننگ کی طرف میرے کوشش ہوگی کہ میں دوبارہ سے مزید کام کر سکوں اس میں. اور جو میری پینٹنگ ہے, جو میرا اسٹائل ہے ان پیلٹ نائف اینڈ پیسٹلز, وہ ایز ریلیکسیشن میں جاری رکھوں گی, وہ اپنے لیے ہے نا. لیکن بھائی میرا اب ظاہر ہے, میں فائزہ کو کتنے ہم 25-30 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. بالکل. ہم نے بہت سا کام بھی اکٹھے کیا. میں نے بہت سے پی ٹی وی کے 90s کے دور کے پروگرامز ہوسٹ کیے جو سیٹ جو ہے وہ فائزہ کے لگائے ہوتے تھے. لیکن فائزہ ماشاء اللہ, آئی ایم ریئلی ہیپی the way you have evolved as a fine artist, and I will highly encourage you and recommend کہ جو 3D pop art ہے نا, اس کو آپ ضرور پاکستان میں آگے لے کے چلیں, and we would like to see more of it. Absolutely, کوشش یہی ہے. And thank you very much for inviting me. And I must say you haven't changed a bit. اچھا 90s جیسا ہی ہوں. بالکل, آپ اسی ٹائم لاک ہو گیا. ٹائم لاک ہو گیا. ٹائم لاک ہو گیا. ریزن وہ نہیں پوچھنا, نسخہ نہیں پوچھنا. نہیں, وہ بات میں. وہ بات آف دا کیمرا. آف دا کیمرا نسخہ بتاؤں. فائزہ, thank you very much. Indeed, it was a pleasure to have you on the show. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے فائزہ کے ساتھ ان کا ڈفرینٹ سا اسٹائل کام کا آرٹ ورک انجوائے کیا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. زندگی نے دی اجازت, پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ.
नौजवानों तक पहुंचा सकती है। और आवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात आवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। उपल कैपिटान इसमें शार्क के मुंह जैसी धात की जाली है, एक पेशे निगाह विंड स्क्रीन, बहुत सी जगह और 6 सिलेंडर्स रखने वाले आज भी इसकी दिल से तारीफ करते हैं और इसे ढूंढते फिरते हैं। उन्नीस 1950 और 60 की दहाई के उरूज में कैपिटान ने जर्मन मुआशी मोज़े को एक मुजस्सम हकीकत का रूप दिया। ये एक ऐसी कार थी जिसने कहा था मैंने इसे बनाया है। आला दर्जे का मॉडल, ऐशो आराम का मंजर। सन 38 से लेकर 1970 तक के उपल कैपिटान के तमाम मॉडल्स जहां जमा किए गए हैं। शुमाल मगरबी जर्मनी में कायम ये फॉर्म जोसेफ और मार्टिन डेगनर की मालकियत है, जो उपल के परिस्तारों के लिए किसी तौर एक खजाने से कम नहीं है। दोनों भाई अपने वालिद की तरह एक कार डीलरशिप चलाते हैं, जैसे इनसे बेशतर इनके वालिद करते थे। वो उपल बिलखसूस कैपिटान इकट्ठी करते हैं। लड़कपन में उन्होंने कैपिटान के पहियों पर बैठने का मजा लिया है, जब इनके पांव के नीचे लकड़ी के ब्लॉक्स रखे होते थे। अब इसमें हैरत अंगेज अंदाज में बिल्कुल नए तरीके से गिलाफ चढ़ाए गए हैं। दोनों भाइयों की तवज्जो एक ऐसी कार ने हासिल की है जो एक वक्त में ऑटोमोटिव दुनिया की भरपूर तरीन तवज्जो का मरकज रही है। जोसेफ डेगनार ने बताया कि उपल कैपिटान को मगरबी जर्मनी की ऑटो इंडस्ट्री में एक शाहकार की हैसियत हासिल थी और शहरियों के लिए ये किसी स्टेटस से कम नहीं थी। ये हमारे लड़कपन और अवाइले जवानी के दौर में किसी ख्वाब से कम नहीं थी। एक ऐसी कार जो हमारे वालिद बमुश्किल ही अफोर्ड कर सकते थे, या सिर्फ आर्जी तौर पर महज एक नुमाइशी दिखावे के लिए। ये 1950 और 60 की दिहाई में एक तखयलाती और इंतहाई पुरताइश कार शुमार होती थी। 35 सालों पर मुहित कैपिटान के तमाम 8 मॉडल्स नए और पुराने यहाँ मौजूद हैं। दूसरी जानब कैपिटान की खुसूसियात ने उसे एक बेशकीमत तस्वुर दे दिया, और यही वो तस्वुर और बरतरी थी जिसका तस्वुर खरीदारों को मतलूब था। बाएं जानिब 1938 से 1954 की मॉडल की कैपिटान है, जो बड़े क्रोम और लंबी चूड़ियों वाले बड़े अमरीकी क्रूजर से मुमासलत रखती हैं। 1954 में कैपिटान को एक मुकम्मल कवर पर मुश्तमिल बॉडी दी गई थी, जिसमें गाड़ी के फेंडर्स और हेडलाइट्स को यकजा किया गया। इस तरह से उपल ने अपने सबसे मशहूर मॉडल P26 तैयार किया, जिसमें P से मतलब पैनोरामिक विंडशील्ड है। पैनोरामिक विंडशील्ड की मदद से एक वसी पेश मंजर को देखा जा सकता है। ये रुझान दुनिया भर में अमेरिका से फैला। इस मॉडल को बादशाह की होल कैपिटान की उर्फियत भी हासिल हुई, क्योंकि इसकी पिछली लाइट्स पुराने जमाने की होल्स लाइट्स फैशन से मुमासलत रखती थी। इस वक्त ये कतई बड़ी कामयाबी नहीं थी, क्योंकि उसकी अक़बे नशिस्त बहुत तंग थी। उस वक्त की इंडस्ट्री के बड़े कप्तान अपने सर पर रखी टोपियों के साथ इसमें नहीं बैठ सकते थे, लिहाजा सिर्फ 9 महीने
महीने की मुद्दत में ओपल ने एक नया मॉडल तैयार किया। ये कॉपिटैन का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला मॉडल है। ये 1959 से लेकर 1963 तक तैयार किया गया। इन वर्षों में तकरीबन हर एक ज्यादा नई तादाद में कॉपिटैन रजिस्टर्ड की गई बनिस्बत दीगर 6 सिलेंडर्स की हामिल तमाम जर्मन गाड़ियों के मुकाबले में। 1950 की दिहाई में जब जर्मनी के बेशतर लोग पैदल थे और औसत काम करने वाली कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वजीर इक्तसादियात लुडविग एरिक के मातहत मगरबी जर्मनी की मईशत उरूज पर पहुंची थी। लोग अपनी बढ़ती खुशहाली को एक बड़ी कार के साथ देखना पसंद करते थे। इस तनाजुर में ओपल कैपिटान एक दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त मकाम पर एक बेहतरीन कार थी। आज के जमा करने वाले हर तरह से कैपिटान से वाबस्ता हैं। इनमें जुनूब मगरबी जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले मार्क्स लीनियर भी हैं। इनकी अपनी कैपिटान इस वक्त रंगो रोगन की दुकान में मौजूद है। मार्क्स इस वक्त अपनी कैपिटान को तैयार करवा रहा है। ये वो गाड़ी है जिसमें वो अपनी अहलिया के साथ शादी के दिन घूमे फिरे थे। अगर आप ओपल कैपिटान चलाते हैं तो जरूर आप में कुछ खास मौजूद है, लेकिन ये सब बेकर्स, कसाब और इमारतों के ठेकेदार थे। 6 सिलेंडर्स की मौजूदगी ने इस कार को इस रेंज की तमाम गाड़ियों से मुमताज कर दिया था। सेडान की साबका खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए अभी भी कुछ बेहतर करना बाकी है, लेकिन मार्क्स लीनियर इस हवाले से बहुत पुरुमीद हैं। बेशतर लोग गाड़ी की जानिब देखे बगैर ही चले जा रहे हैं। नई गाड़ियों के हवाले से मेरा रुझान भी कुछ ऐसा ही है। मैं हमेशा से पुरानी और नायाब गाड़ियों देखकर खुश होता हूँ। ये ऐसा ही है जैसे भीड़ में कोई शनासा चेहरा नजर आ जाए। वो चाहते हैं कि वो अपनी कैपिटान को एक धाती बोई नीले रंग में पेंट करवाएं। इस हवाले से मार्क्स लीनियर को स्विट्जरलैंड से असल स्प्रे आउट कार्ड्स और तराकीब हासिल करना पड़ी। आपको ये एहसास करना होगा कि जर्मनी में दूसरी जंग अजीम के फौरन बाद किसी को भी धाती रंग के साथ कार ऑर्डर करने की जरूरत नहीं हुई। ये बहुत ही महंगी थी और बेशतर मौकों पर लोगों को हसद में मुब्तला कर देती थी। मार्क्स को उम्मीद है कि वो अपनी वेडिंग कोच को कुछ हफ्तों तक जल्द धाती बोई नीले रंग के साथ चुनेंगे। ओपल कैपिटान के तमाम तर वर्जन रॉसल शेम में ओपल के मगरबी जर्मनी के सदर दफातर में डिजाइन किए गए थे। जॉर्ज गैलन ओपल के साबिक डिजाइनर हैं। आबाई कंपनी जनरल मोटर्स ने इन्हें मुत्तहिदा अमेरिका से रॉसल शेम भिजवाया और बाद अज़ां वो मगरबी जर्मनी में मुकीम हो गए। जॉर्ज गैलन ने इस 1956 साख्ता उम्दा कैपिटान सफर से लुत्फ उठाया। सालों तक ये कारें इसी हॉल में तैयार की गयीं। ये बहुत ही सहल अंदाज में खामोशी से चलती है। आप सिर्फ एक उंगली की मदद से बड़े स्टीयरिंग व्हील को घुमा सकते हैं। ये सुनहरी कैपिटान अपनी इकसाम के हवाले से बहुत मुनफरिद है, जो ओपल की जुबली कार है। इसमें कार बनाने वाली कंपनी ने इस बात को यकीनी बनाया कि इसकी पेश करदा जुबली कार उस वक्त की कारों के हवाले से बेहतरीन मॉडल हो, और ये उस वक्त के ओपल के मॉडल्स में सबसे बेहतरीन था। इसने नवंबर 1956 में असेंबली लाइन को अंदर ही अंदर फैला दिया। 1950 में K40 हॉल को दुनिया भर में जदीद तरीन ऑटोमोबाइल गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बेहतरीन सहूलतगाह समझा जाता था। आज ये बिल्कुल खाली पड़ा है। मुझे याद है यहाँ पर तैयार और निस्फ तैयार शुदा गाड़ियों की लंबी कतारें मौजूद होती थी। इस जगह पर गाड़ियों में सीटें लगाई जाती थी और अगले मरहले में गाड़ियों के व्हील लगाए जाते थे। 1950 की दिहाई के इख्तिताम तक ओपल यूनिट में 32,000 अफराद पैदावारी अवामिल में काम करते थे। जनरल मोटर्स के एक जर्मन झेली इदारे की हैसियत से ओपल ने बहुत सी कामयाबियां हासिल की और ज्यादातर क्रेडिट कैपिटान को जाता है। इस हवाले से ये इस ब्रांड का सुनहरा दौर था। ओपल इकट्ठी करने के शौकीन मार्टिन और जोसेफ डैगनर फिल वक्त एक बहुत ही खास कैपिटान मॉडल की तलाश में सरगर्दां हैं, जो जरूरी नहीं कि सुनहरे रंग की हो।
इस खानदान की मलकियत में यूरोप भर के मुकाबले में ओपल के मजमूई मॉडल्स की एक बड़ी कलेक्शन निजी हैसियत में मौजूद है। ये एक महंगा मशगला है क्योंकि कैपिटान एक बेहतर मॉडल होने के बावजूद दीगर विंटेज गाड़ियों की कीमत के मुकाबले में महंगा है। इसके बावजूद इन मॉडल्स की मालियत कई लाखों में है, लेकिन इन दोनों भाइयों के नजदीक इनके एहसासात की कीमत बेहिसाब है। 1954 के इस कैपिटान मॉडल की एक बाकायदा शाहाना तारीख है। सहरा की रेत की वजह से इसकी सतह का रंग कदरे फीका हो गया है। इस कार के कागजात से जाहिर होता है कि असल में इसे मराकश के शाही खानदान के तसर्रुफ में रखा गया था। ये अम्र बहुत खूबसूरत है कि इसकी कुछ खामियों को बेहतरीन अंदाज में दुरुस्त कर दिया गया है। आप इसे शमाली यूरोप में नहीं चला सकते। ये मॉडल खुसूसी तौर पर शमाली अफ्रीका के लिए तैयार किया गया था और इसमें इसी वजह से हीटर नहीं है। मेरे ख्याल में मराकश के बादशाह रियासती मौक़ों के लिए रोल्स रॉयस इस्तेमाल करते रहे होंगे और रोजमर्रा ड्राइविंग के लिए ये उस वक्त शाही लेमोजीन का दर्जा रखती होगी। आप यकीनी तौर पर नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि मराकशी बादशाह और दीगर अरब हुक्मरानों की तरह से दौलतमंद नहीं था। मैं तसव्वुर कर सकता हूँ कि वो एक ओपल कॉपिटैन से मुतमईन थे और हकीकत में उसे ही ड्राइव करते थे। बहुत पहले मैकेनिक्स ने एक और कैपिटान P26 पर मुरम्मत के काम को खत्म किया है। मार्क्स लीनियर की वेडिंग कोच भी एक P26 है। इस पर पेंट का काम तकरीबन खत्म हो चुका है और ये अपने घर के गैराज में वापस आ चुकी है। लीनियर के बेटे फ्लोरीन ने अकबी नशिस्त पर रखने के लिए मदद फराहम की। इन्हें एक मुकम्मल मुलाजमत करने की जरूरत नहीं है, बस इस अमर को यकीनी बनाना है कि ये राहत बख्श और सड़क के काबिल रहे। एलके लीनियर अपने साथ उठाकर एक पुराना फोटो एल्बम लाए हैं। क्या आप रंग का मवाजना करने के लिए ये देखना चाहेंगे कि आया ये वाकई हमारी कार की तरह लगता है? हमारी डार्लिंग, ये लीनियर की वेडिंग कोच है जब उन्होंने 2002 में शादी की और तभी से ये कैपिटान इनकी फैमिली का हिस्सा है। डेगनर भाइयों ने कैपिटान 51 को लिया और बाहर घूमने निकल पड़े। इन्हें ये मॉडल बहुत पसंद है क्योंकि इस मॉडल को एक गैंगस्टर कार के हवाले से बहुत मकबूलियत हासिल रही है। ये कार 1950 की दिहाई के गैंगस्टर्स का पसंदीदा इंतखाब थी जो इसे डकैती करने के बाद वहाँ से फरार होने के लिए इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से जानते थे कि इस काम के लिए कैपिटान एक बेहतरीन इंतखाब है। जंग के बाद के इब्तदाई सालों में पुलिस इतने मुनज़्ज़म अंदाज में सहूलियात से लैस नहीं होते थे जैसे वो अब हैं। उन्होंने 18 हॉर्स पावर की हामिल फौजी गाड़ियां चलाई थी, जबकि इस कॉपिटैन की ताकत 58 हॉर्स पावर के बराबर थी। ये कारकर्दगी के लिहाज से भी हद दर्जा अफजल थी। इस गाड़ी की ताकत और इस्तात की वजह से पुलिस इस गाड़ी को चलाने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ बेबस रहती थी और उन्होंने कभी कोई मौका फराहम नहीं किया। गैंगस्टर कैपिटान का डिजाइन अमरीकी मॉडल से बहुत मुशाबिहत रखता था और इसकी मकबूलियत का ये एक अहम जुज़्व है। रॉसल शेम में ओपल हाउस के सामने रिटायर्ड डिजाइनर जॉर्ज गैलन एक कतार में खड़ी कैपिटान का मुआयना कर रहे हैं। 1950 की दिहाई में मगरबी जर्मनी के लोग हर उस चीज के दीवाने थे जो अमेरिका से आई हो। यूं ओपल ने शेवरले, ब्यूक और कैडिलैक के मॉडल से आइडियाज लिए और इस हवाले से P25 के लिए डिजाइन का तस्वर किसी इस्तिस्ना से खाली नहीं था।
यहाँ ये डिजाइन 1958 के बड़े शेवरलेट डिजाइन से किस कदर मुमासलत रखता है। आप इसे यहाँ देख सकते हैं कि कैसे विंड स्क्रीन और अकबी विंडो कैसे एक दूसरे से मुशाबियत रखते हैं। ये 2 दरवाजों का विजन है, लेकिन 4 दरवाजे भी इससे जरा मुख्तलिफ नहीं थे, और ये वो जिसे वो कुत्ते की टांग कहते थे। आपको अंदर जाने के लिए इस कोने के नीचे से चढ़ना होता था। कुत्ते की टांग के सबब आप बामुश्किल कार में दाखिल हो पाते और मुतल्लिका शख्स को अंदर ले जाने के लिए एक टेक्निक अपनाना पड़ती थी। इस हवाले से इन्होंने लोगों को सिखाया कि पहले बैठें और फिर अपनी टांगें अंदर खींचें। इसमें किसी तौर कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉर्ज गैलन ने कैपिटान के मुख्तलिफ मॉडल्स की खसूसियात को दीगर मॉडल्स से मुमताज करने के हवाले से खसूसियात की निशानदही की। 1954 में उन्होंने वो खसूसियात हासिल की जिसे बादशाह शार्क के मुंह की जाली से मुशाबित दी गई। ग्रिल खोलने के हवाले से ये खुला मुंह ओपल की खुसूसियात से मुशाबिह था। शार्क का मुंह सबसे पहले अमेरिका में 1953 में शेवरलेट क्रोवेट पर आवेजा किया गया था। यूं ओपल ने इसे कमोपेश इस सूरत में अपने बड़े मॉडल्स के लिए मुंतखब किया। इस ज़िमन में कैपिटन इस जाली नुमा डिजाइन के हवाले से सबसे मखसूस विजन का मॉडल था। मार्क क्लीनर का P26 आखिरकार इसे लेने के लिए तैयार है। इसे अभी रोड के काबिल बनाने के लिए मजीद कुछ कोशिश और वक्त दरकार है। यूं नए बहाली तजुर्बाकार के साथ इनका ये पहला सफर है। इसे 1962 में बनाया गया था और यूं इसके और इसके ड्राइवर की उम्र यकसां बनती है। मार्क क्लीनर अपने लड़कपन में ही ओपल कैपिटान के इश्क में गिरफ्तार हो गया था और फिर वो कभी इस प्यार के हसास से बाहर निकल ही नहीं पाया। लेकिन ये 100 किलोमीटर में 11.7 लीटर गैस इस्तेमाल कर लेता है। ये एक स्टीयरिंग अमूदी इस्तादा गियर तब्दीली के साथ 90 हॉर्स पावर को 3 रफ्तारों में बंद कर देता है। इस हवाले से फैसला कुन अंतर सिलेंडर्स की तादाद है। 6 सिलेंडर से इस्तेमाल कार बनिस्बत एक 4 सिलेंडर वाली कार के ज्यादा आसानी और सहूलत के साथ चलाई जा सकती है। आप तीसरे गियर के साथ ही तेज तरीन रफ्तार हासिल कर सकते हैं और फिर 165 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर सकते हैं, और मैंने ऐसा कई बार किया है। मार्क क्लीनर के पास अपनी नई मुरम्मतशुदा कैपिटान में सफर करने का एक खास मकसद है। वो अपने पसंदीदा अंगूरों के बाग से अपनी पसंदीदा वाइन लेने जा रहे हैं। ये राइन की मुखालिफ सिमत में वाक़या है। कैपिटान पर क्रॉसिंग के लिए कार फेरी का बोर्ड नस्ब कर दिया जाता है। मार्क्स जब कैपिटान की तवील तारीख पर नजर डालते हैं तो अपनी पुरानी यादों का मंजर इनके सामने छा जाता है। लड़कपन में हमारे पड़ोस में एक कैपिटन और बाद में ओपल एडमिरल या ओपल डिप्लोमेट बहुत अहमियत की हामिल थी। कोई ऐसी गाड़ी चलाने से आप ज्यादा पुरतखय्युल और तसव्वुराती नहीं बन जाते, लेकिन आजकल आप कहेंगे कि कैपिटन को चलाने को बहुत कम समझा जाता है। इसका अपना एक उरूज था, लेकिन 1964 के बाद से कैपिटान के लिए एक तवील और कदरे सुस्त ग्राउंड के दौर का आगाज हो गया। बाद-अज़ां नया पेश किया गया मॉडल ओपल कैपिटान ए, जो अपनी बनावट और डिजाइन के हवाले से कदरे बॉक्सी था, काबिले फख्र कैपिटान जो कभी एक उरूज का हामिल था, आज महज एक टीम का हिस्सा बन चुका है। और शायद ये ही वक्त का मामला है। 1970 के अवाइल और ओपल की जानिब से कैपिटान की प्रोडक्शन रोक दी गई, क्योंकि जर्मन लोग अब बड़ी अमरीकी कश्ती नुमा गाड़ियों से ज्यादा मुतासर नहीं होते थे, बिलखसूस ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों से। एग्जीक्यूटिव क्लास में एक कार की दिखावट बहुत अहमियत रखती है और इस ज़मीन में यहाँ कुछ पॉइंट्स कम रहे हैं और यही वो हतमी मराहल होते हैं। कैपिटन चूंकि अपनी कीमत में काबिल बर्दाश्त थी और इसी वजह से उसे दीगर टॉप रेंज गाड़ियों के मुकाबले में कुछ सस्ते अवामिर के साथ बनाया गया और शायद ये अवामिर ज्यादा साजगार साबित नहीं हुए। 33 साल के इस तवील अरसे में इसने इंतहाई खूबसूरत 8 पोशाकें पहनी। सबसे पहले एक लंबे और सतवां नाक के साथ 1930 के अख्ताम पर, फिर एक रेशमी तैरती कश्ती के से जिस्म की तरह से चाको चौबंद और बड़े इंजन के साथ, फिर बाद-अज़ां खरीदारों की ख्वाहिशात के ऐन मुताबिक कैपिटान एक शार्क के मुंह जैसी जाली की तरह से आई और कैपिटान को मौजूदा सूरत
حاصل ہوئی۔ فرنٹ میں وسیع پیش منظر ونڈ شیلڈ کے ساتھ اور عقب میں بھی ایک وسیع پیش منظر کے ساتھ اب اس نے حقیقتاً ایک نیا سلیقہ حاصل کر لیا۔ P26 پہلی لین میں وارد ہوئی۔ وہ فروخت کے ریکارڈز کے حوالے سے بہترین کاپیٹان ثابت ہوئی۔ اسے تاج پہنانے کے لیے میں خود بہت بے قرار ہوں۔ 6 سلنڈرز کے ساتھ ایک کاپیٹان بادشاہ کی طرح سے، لیکن بعد ازاں جلد ہی بڑی 3 آئی۔ کاپیٹان گویا کہ جیسے کسی سمندر میں ہو۔ ایڈمرل اور ڈپلومیٹ کے ساتھ کاپیٹان نے اپنا ہیڈ اپنے سر پر سجایا۔ پریوں کلیوں کی آبادی، جنت ہے کشمیر کی وادی۔ اس وادی کے طول و عرض میں سبز چراگاہوں کی خوشبو لہراتی ہے۔ پھولوں اور رنگوں کی آہٹ میلوں دور سے سن جاتی ہے۔ اس کی ایک جھلک ہی روح کو مہکاتی ہے۔ یہاں تو شب بھر میاں محمد بخش کے دل پر شیر چمکتے ہیں، دیوانے جگنو بن کر۔ سیف ملوک ہر دل میں جاگے خوشبو بن کر۔ جھیلیں اس مونی وادی کی سبز آنکھیں ہیں، نیلم جیلم اور چناب کے بہتے دریا رگیں ہیں اس کی۔ جھرنے اس کی آوازیں ہیں، سر والے جن کو سنتے ہیں گر والے بھی سر دھنتے ہیں۔ ان دریاؤں کے البیلے مائیے ٹپے ایسے میٹھے جیسے پھولے گالوں والے 2 بچے کشمیری بولے، حسن کے بند دریچے کھولے۔ برف کی شالیں اوڑے پیر پنجال کی وادی، جس کی تیز ہواؤں میں مچلے آزادی، جس کے جھرنے نظمیں اور غزلیں کہتے ہیں اور حنا کی خوشبو لہراتے رہتے ہیں۔ خوشبو کے ہلکورے لیتے گرما گرم اور خستہ یہ کشمیری کلچے، تازہ ساگ اور مکی کی روٹی کے خوشبودار نوالے بچپن کے یاروں کی صورت دل میں یوں گھر کر جاتے ہیں، دھڑکن دھڑکن لہراتے ہیں۔ جاڑے اور برفیلے موسم سے کچھ پہلے بکر والوں کے کچھ کنبے اپنی بھیڑوں کے جھرمٹ میں چلتے چلتے بانسریا کی میٹھی تانے لہراتے ہیں۔ سرف چناروں کی یہ دھرتی، مست نظاروں کی یہ دھرتی۔ شاہ بلوط کی اس وادی پہ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، خاک کے اس قرے پر جنت اگر کہیں ہے، صرف یہی ہے، صرف یہی ہے، صرف یہی ہے۔ یارو یہ وادی جنت ہے، اور جنت تو ہر اہل ایمان کا دل ہے، اور یہ خطہ پورے پاکستان کا دل ہے۔ پاکستان کے ہر خطے کی الگ ہے خوشبو، جدا ہے رنگت،
ہر خطے کے نرالے جذبے، نئی محبت، ہستا بستا یہ گلدستہ ایک تحفہ ہے۔ یہ الفت ہے، یہ رحمت ہے، یہ عزت، یہ شان، یعنی رب کی ایک نعمت ہے دھرتی پاکستان۔ وائرس سے بچاؤ ہمارے ہاتھ میں ہے اور صرف کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نہ صرف ہم خود اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک بار بار دھوئیں۔ کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ہر بار نئے ٹیشو پیپر یا اپنی کونی سے ڈھانپیں۔ اپنی آنکھوں، ناک اور منہ کو ہاتھ بالکل نہ لگائیں۔ مسافے کے لیے ہاتھ نہ ملائیں، نہ ہی گلے ملیں۔ کھانسی یا نزلے کی علامات کے حامل افراد سے کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں۔ رش والی جگہ جانے سے پرہیز کریں۔ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں۔ اگر آپ کو کھانسی، نزلہ یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو فوراً طبی معائنہ کرائیں۔ آئیے سب مل کر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اس مشکل وقت سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ہم سے ہے پاکستان۔
آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری